नमस्कार दोस्तों। आज देश की हालत ये हो गई है कि हमारे खेत को उसकी बाढ़ ही खाने लगी। इससे आप समझ सकते हैं। और ये हालत, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सरकार कहती है रेप नहीं हुआ। बड़े दबाव के बाद में, सारी चीजों के बाद में एक जांच शुरू होती है और जांच में कहा जाता है हाँ बलात्कार हुआ है। लेकिन जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आती है तो साहब सबूत नहीं पेश किए जाते। आधे अधूरे सबूतों के कारण अदालत आरोपियों को दोष मुक्त कर देती, वजह कि साक्ष्य नहीं आए। तो इस तरह की स्थिति और इस तरीके से तमाम बलात्कारियों को बचाया जाता है। और यदि कहीं खुदा न खास्ता सजा हो जाए तो कैसे उन बलात्कारियों को सजा माफ कर दी जाती है, उनको दूसरी तरीके से बचाया जाता है, वह भी हमारे यहां होता है। और हालात ये कि जब कोई सच बोले तो उसको कुचलने की कोशिश होती है, उसे मार देने की कोशिश होती है। छद्म विपक्ष के जरिए इस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है और जो वास्तव में लड़ती हुई मुख्य विपक्ष है उसे खत्म करने की कोशिश होती है। तो यह भी होता है। और इन सब के बीच जब एक पार्टी जो लड़ती है लोकतंत्र के लिए, जिसने देश को आजाद कराया बनाया, और जब उसके तमाम नेता सच बोलते हैं तो उनके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी हमलावर हो जाती है और उसके बाद कहते हैं कि साहब लोकतंत्र, और इसकी दुहाई देते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ बात करूंगा कि क्या हालात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती है कि देश का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में है और वो वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चूंकि फेलो हैं, विजिटिंग फेलो हैं, वहां पर लेक्चर देने गए थे। वहां उन्होंने लेक्चर दिया। उसके बाद में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वहां पर उनकी, उसने उनका इंटरव्यू दिया और उसमें राहुल गांधी ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की। देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a. You haven't heard his speech where he said Yes. where he said nothing happened in 70 years. Right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what independence I said. didn't happen, and the independence is washed away. Yeah. Right? So if that's not an insult, what's an insult? Right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. लेकिन देश के हालात पर जब चर्चा होती है तो बोलते हैं, वो बताते हैं कि स्थितियां क्या हैं। You asked why we did the yatra, what was the idea behind the yatra? The idea behind the yatra was an expression of voice, right? And there is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC, but BBC is just one element of it, right? You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened, and the journalists who toe the line of the government are rewarded. Right? So it's a part of a pattern, and I wouldn't expect anything different. But if the BBC stops writing against the government,
everything will go back to normal. All the cases will disappear, everything will go back to normal. Right? So this is the new idea of India. The BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media, they want silence. And they want silence because they want to be able to take what is India's and give it to their close friends. और उन सब को लेकर के जब वो बताते हैं तो उससे खतरा किसे पैदा होता है? देश को नहीं, उससे ब्रांड मोदी को खतरा समझ में आता है, उससे सरकार चिंता में आ जाती है और राहुल के भाषण से कोमा में चले जाते हैं। पुलिस स्टाफ, हलंत, नुक्ता और सारी चीजों को लेकर के बैठे होते हैं। आप समझिए तो इस तरीके से राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती। राहुल गांधी कहते क्या है? Well, I mean, as far as the Indian foreign policy is concerned, I support the Indian foreign policy, and I'm okay with the Indian foreign policy. I don't have a huge disagreement with it. With regards to an invasion, we've already been invaded. I mean, we've got 2,000 square kilometers of our territory that is in the hands of the PLA. So, and the Prime Minister himself has stated that nobody has entered India. Not a single inch of land has been taken. And this has destroyed our negotiation position, right? Because our negotiators are being asked, what's the fuss about? Your Prime Minister says that no land has been taken. So that's one aspect of it. The other aspect of it, which I keep saying, is India needs to be very, very careful with what the Chinese are doing at the border. The Chinese are acting in a hostile manner, in an aggressive manner, and we need to be very, very careful. The Congress party's policy on China is very clear. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. Doesn't matter who they are, that's not acceptable to us. And what has happened is that the Chinese have entered our territory, killed our soldiers, and the Prime Minister has denied it. That's the problem. हम किसी को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने और हमें डराने, धमकाने को स्वीकार नहीं कर सकते। चीनियों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और हमारे सैनिकों को मार डाला, लेकिन प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं। समस्या यहां तो जब राहुल गांधी यह कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमलावर हो जाते। क्यों? क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं। The opposition in India is no longer fighting a political party. Right? This is something that you say BJP, well, that's not who we are fighting. Right? We are fighting the institutional structure of India now. Right? We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions. Right? So the idea of a level playing field doesn't exist. Right? In the United Kingdom, two parties fight each other, and the institutions are neutral. That's gone in India. Right? Institutions are not neutral. We are fighting the institutions and the RSS and the BJP. And every opposition person understands this very clearly. And most Indian people also get it. I see with my own eyes what's going on in India. And I can see that Mr. Adani has gone from being the 609th richest man to the second richest man in a matter of 3 years. I can see that he's rewarded across the board. I can see he's allowed to dominate industries in every industry in the country. And that, we don't need Mr. George Soros to tell us that. We can clearly see it's happening. And he's got a very good relationship with the Prime Minister. सच बर्दाश्त भी कैसे? स्थिति ये कि चीन हमारे देश का 2000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है, जो पीएलए है, वहां पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। इसने बीजिंग के साथ बातचीत करने की हमारी स्थिति को नष्ट कर दिया है। तो राहुल गांधी यही कहते हैं। आप सब Message to all Indians is that you're part of this wonderful country. You're important for the future of this wonderful country, and the entire country has to come together and work together if it is to be successful. Okay. Suresh Gupta is a very long. I think the use of violence against anybody is wrong. कहां गलत था? तो जब यह स्थितियां हो तो आप सब, और हालत यह है कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की आदत में शुमार है, क्योंकि ये पढ़ना नहीं जानते, इन्हें अंग्रेजी आती नहीं, और इसका नतीजा यह है कि कुछ भी बोलते। तो बीजेपी लगातार राहुल गांधी के बयानों को जब तोड़ती है, तो राहुल गांधी यही कहते हैं, बीजेपी मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद करती है। मैं अपने देश को कभी बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि यह देश हमारा है। भारत के लोगों को तब अपमान महसूस हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए और वहां कहा कि आजादी के पिछले 70 साल में देश में कोई काम नहीं हुआ। तो आप बताइए, जिस देश के लोगों ने देश को इस 70 साल में बनाया, क्या वो अपमान नहीं था? यह एक विषय है। इसके बाद राहुल गांधी जब इन सारी चीजों पे बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो है भारत में लोकतंत्र की स्थिति है, तो भारत में विपक्ष अब किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है संस्थागत ढांचे से, जिस पर कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, तो जिसने सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा। इसको लेकर राहुल गांधी बताते, और यही नहीं, देश भर में आवाज का दमन करना है। जो बोलेगा, सच बोलेगा, उसे खत्म कर देना है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और उसे दबा करके देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में सौंपना, यही नरेंद्र मोदी की नीति है। और इसको लेकर के राहुल गांधी बात करते हैं। सवाल आता है कि आखिर यह स्थिति है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चीन से जो प्रेम है, वो प्रेम इतना प्रगाढ़ है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम है। बोले ह्यूएन सन, जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था, और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। हम लोगों का बड़ा जाता है। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ। मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। साहब वो खुद बताते हैं कि कैसे चीन के लोग उनके गांव आते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हम सब चीन के साथ करें। तो आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो कहते थे चीन से हम ये खत्म करेंगे,
वो खत्म करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन स्थिति क्या, चीन से सब कुछ बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, व्यापार के अलावा व्यापार घाटा बढ़ गया, देश को बेचने की स्थिति पैदा कर दी। ये आखिर हो क्या? राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो अपना लेक्चर दिया, उसमें जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। नरेंद्र मोदी देश की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ढांचे जैसे संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायालय पर अंकुश लगाया जा रहा है, विपक्षी आवाजों का पेगासस से जासूसी कराई जा रही है और भारतीय लोकतंत्र दबाव में। तो बताइए क्या गलत बात कही? बिल्कुल यही हो रहा है, रोज ब रोज हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। तो आप बताइए इसमें गलत क्या कहा? और जब वो राहुल गांधी पर हमलावर होते हैं कि पूरी भाजपा हमलावर होती है, यहां साहब राहुल गांधी ने वहां जाके अपमान किया, तो आपको याद होगा दक्षिण कोरिया में जब प्रधानमंत्री गए थे मई 2015 में, तो उन्होंने जाकर के क्या कहा था, वह भी दिन याद करिए। वहां कहते हैं कि पहले लोगों को भारत में पैदा होने में शर्म आती थी कि हमने क्या पाप किया था जो भारत में पैदा हुए। भारत का अपमान था ये, तो किसी और चीज का अपमान नहीं था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। तो आप छोटी सी बात नहीं, और ये एक बार नहीं है, दसियों बार ऐसी स्थिति है। तो जब आप ऐसी बात बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या नहीं है, कैसे नहीं। मोदी जी आप याद करिए, जब आप नहीं थे, देश के अंदर जब खाने को भोजन नहीं था, तो कांग्रेस के ही शासनकाल में पंडित नेहरू के नेतृत्व में हरित क्रांति हुई थी 60 के दशक में, 1970। और उसके बाद में हमारे यहाँ अन्न का इतना उत्पादन शुरू हुआ कि हमें बाहर से नहीं लाना पड़ा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने की बात, और इसको लेकर ICDS योजना लागू की गई और उसके लिए पूरा किया गया, जिसके कारण आप भी आज हैं। यह भी कांग्रेस के शासन में हुआ। देश भर में स्कूली बच्चों को भरपेट भोजन देने का जो मिड डे मील है, उसकी योजना शुरू की गई, वो भी कांग्रेस के शासन में ही शुरू की गई। वो आप क्यों भूल रहे हैं? देश भर में बच्चों को मुफ्त में टीके उपलब्ध कराने का जो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, वो भी 1985 में शुरू हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार। तो लगातार एक नहीं, राइट टू एजुकेशन किसने दिया? शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने दिया, जिसके कारण आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांट पा रहे हैं, जिस एक्ट के सहारा लेके, वो भी कांग्रेस ने दिया। सूचना का अधिकार किसने दिया? वो भी कांग्रेस ने दिया। तो आप ये समझ लीजिए, और इसके बाद आप ऐसी बात करते हैं, तो जब ये बात करते हैं तो बिल्कुल शर्मनाक स्थिति आती है कि आप असल में झूठ बोलते हैं। और ये मक्कारी की राजनीति कभी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ये मक्कारी आपको खत्म करती है इन सब चीजों। आप एक चीज समझिए, हाथरस में जो हुआ उससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा कि हाथरस में यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया सबने देखा। सबूतों को छिपाया गया। सीबीआई को चार्जशीट में गैंग रेप, मर्डर कहना और आधे अधूरे सबूतों को कोर्ट में पेश करना बीजेपी की कथनी करनी को दर्शाता है, क्योंकि बलात्कारी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। बलात्कार के आरोपी भाजपा नेताओं को हमेशा भाजपा संरक्षण देती है। दूसरा, भाजपा शासित राज्यों में बलात्कारी भाजपाइयों को पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हमेशा बचाया जाता है, बचाया जाएगा। अब तक के साक्ष्य यही कहते हैं। तीसरा, बेटी बचाओ के नारे और लाल किले से महिला सम्मान की खोखली बात कर महिलाओं को गुमराह किया जाएगा। चौथा, महिला विभाग की मंत्री, मैंने पहले ही कहा, मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। उनको देश की बेटियों की अस्मिता से, इज्जत से, मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। इस बात को कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया, जो उसी क्षेत्र से आते।
करते हुए मैं आपका ध्यान हाथरस पर केंद्रित करना चाहूंगी। हाथरस के उस मामले पर केंद्रित करना चाहूंगी जहां आपने देखा होगा कि एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, उसका रेप किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, डीएम ने क्या भूमिका निभाई, शुरू से ही आपने देखा होगा। उस परिवार के घर को छावनी बना दिया गया। वहां कोई विपक्ष का नेता, उसको इजाजत नहीं थी कि वो जाए उस परिवार से मिले। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उस परिवार से मिलने का प्रयास करते रहे और उन्होंने कहा जोर देकर कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें उस परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। और ये सत्य है। ये आप सब ने देखा कि हमारे पत्रकार भाई बहनों को भी कितनी मुशक्कत, कितनी मुश्किलें आई उस परिवार के पास तक जाने में। जिस तरीके से उस परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहां पर वायर्स बाहर लगा दिए गए और परिवार से जो मिलने जाता था व्यक्ति, उनके आईडीज लिए जाते थे, उनका ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति है। और अंधेरी रात में जिस तरीके से पुलिस ने केरोसिन का इस्तेमाल करके उस बेटी के शव को जला दिया गया, उस परिवार से उसका अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया, वो घटना आप सब ने देखी थी। ये तो मीडिया के भाई बहनों का और मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का दृढ़ संकल्प था और उनकी मेहनत थी कि उस परिवार को वहां उसकी सुनवाई हुई। नहीं तो डीएम का वो वायरल वीडियो आप सब ने देखा था, जहां वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परिवार को किस तरीके से धमकाने का काम कर रहे थे। हाथरस की घटना में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था, वो सब ने देखा है। साक्ष्यों को छुपाने की जो साजिश शुरू से हाथरस कांड में चल रही थी, वो सब ने देखा है। डाइन डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज करना और उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट में भी गैंगरेप और मर्डर कहा जाना और उसके बाद अधूरे साक्ष्यों को न्यायालय के सामने पेश करना और उसके बाद 2-3 अपराधियों को दोष मुक्त करना और एक को दोषी बताना, लेकिन ये ना कहना कि बलात्कार हुआ है, अपने आप में बताता है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। बात करते हैं बेटी बचाने की, लेकिन असल में ये बलात्कारी बचाने का काम करते हैं। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे छत्तीसगढ़ में अपने नेता प्रतिपक्ष को बचाने का मामला हो, चाहे मेघालय के उस व्यक्ति को बचाने का मामला हो जिसको मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने चुनाव लड़ाया हो। असल में प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लगता है उन्हें इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए। और उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो बलात्कारियों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश की बेटियों की इज्जत, उनका सम्मान, उनकी अस्मिता सबसे ऊपर। इसके बाद आप समझिए जिस तरह के हालात हैं उनको क्या कहेंगे। बीजेपी के बलात्कारी नेताओं को पार्टी का संरक्षण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लाल किले से और महिलाओं को गुमराह किया जाता है और बिल्किस बानो को के जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनके परिवार, उन्हें रिहा किया जाता है। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। 7.8% बेरोजगारी का रेट है। आप समझिए इतना बड़ा दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस देश के अंदर 81 करोड़ युवा और उनके परिवार बेरोजगार हैं। आप तो बड़ी इकोनॉमी के आगे सरेंडर रहते हैं। आपका तो यह इतिहास है। लेकिन लड़ता कौन? आपके समय में हालत क्या हुई? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत लगातार गिर रहा है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत लगातार गिर रहा है। हंगर इंडेक्स में भारत लगातार गिर रहा है। पीस इंडेक्स में हम लगातार गिरते जा रहे हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लगातार गिरते जा रहे हैं। तो जब दुनिया के सारे मानदंडों में हम नीचे गिर रहे हैं, फिर कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं? इसको लेकर सुप्रिया सिनेत ने बेहतरीन तरीके से चीजें बताई। प्रेस
प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हंगर के इंडेक्स में हम गिरते हैं, पीस के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हैप्पीनेस के इंडेक्स में हम गिर रहे हैं। कौन खुश है इस देश में आज? मोदी जी और उनके चरण चुंबकों को छोड़कर इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आज खुशहाल होकर कहे कि बड़ी जबरदस्त उन्नति हो रही है, दवालब पैसा भरा हुआ है, बच्चों को बढ़िया से पढ़ा रहा हूं और सब कुछ चकाचक चल रहा है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला। और उसको समझने, जब आप देश की बात करते हैं, शर्म आती। याद करिए जब पुलवामा के सैनिकों की शहादत हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने उनके सम्मान में सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया। वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं। और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, देयर इज मी putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे, कहेंगे कि वो है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जब पहुंचते हैं, दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, तो आप उन्हें बदनाम करते हैं। तो आप समझिए यह हालत आपने कर दी है कि देश के अंदर आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि 1% लोगों के पास में इस देश का सारा संसाधन पहुंच गया है, और भारत के जो बाकी लोग हैं वो भुखमरी बना दिए गए। तो आप समझिए, जबकि टैक्स सबसे ज्यादा उन्हीं से लिया जाता है। तो आप इन सारी चीजों से देखिए, तो जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, उसे जानने की जरूरत है। और आपके जो प्रेम संबंध है चीन से, आप जो उसके आगे सरेंडर है, वो सारी चीजें सामने। और दूसरी तरफ छद्म विपक्ष है, जिसे आप टीएमसी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं, और केसीआर की पार्टी, ये सब मिलकर के किस तरह से खेल करते हैं ये भी जानते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे विपक्ष में उनके खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल देती है, वैसे ही टीएमसी नेता जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कलकत्ता में बयान दिया और उस बयान पर रातों रात उनके यहाँ करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप कल्पना करिए, ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी तो बिल्कुल सही कहते हैं, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। ये छद्म विपक्ष
उसके बाद आम आदमी पार्टी को यही स्थिति देख लीजिए। पंजाब में वो पूरी तरीके से बर्बाद किए, जहां उसके पास पुलिस और सब कुछ है वहां वो भी इसी तरह से दमन करती। और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जो है क्या कहते हैं कि उन राज्यों में जाकर के और उन राज्यों में अपने ड्रामे करते हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है या मुख्य विपक्षी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है, तो वहां जाकर के चाहे कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या आप मध्य प्रदेश हो या इसके पहले आपने देखा गोवा में इन्होंने खेल किया टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने, और नतीजा ये हुआ कांग्रेस सत्ता से बाहर ना आ पाई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत और मजबूत हो गई। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी पहुंची गुजरात और जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने की स्थिति में थी, वो इतना स्ट्रांग हो गई कि वो वहां पर पूरी तरीके से ऐतिहासिक मैंडेट लेकर के आई। और इसी तरीके से उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने कमोबेश यही भूमिका अदा की। तो यह स्थिति, एक तरफ तो दिल्ली में ड्रामे दिखाते हैं, दूसरी तरफ जो दिल्ली में पापी है, भ्रष्टाचार का आरोपी है मनीष सिसोदिया, उसे संत महात्मा और न जाने क्या क्या बताते। अभी भूपेश बघेल जी चारों तरफ गाते हुए फिर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने आत्मानंद स्कूल बना दिया, आत्मानंद स्कूल। मैंने देखा नहीं है, मैं आप ही से पूछ कैसे हैं आत्मानंद स्कूल? चलो मान लेते अच्छे हैं। 5 साल में 170 आत्मानंद स्कूल बनाए, 5 साल में 170। छत्तीसगढ़ में 45,000 स्कूल हैं, 1,500 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल, 5 साल के अंदर ठीक कर दिया मनीष सिसोदिया ने। शानदार बना दिया सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये है 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। मैं आपसे पूछता हूं, रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है सुबह 6 बजे। पिछले 5 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है? अरे कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? रात को बैठ के दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, वो कोई स्कूलों में थोड़ी जाएगा। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। और दूसरी तरफ छद्म विपक्ष बन के विपक्ष का गला घोटते हैं, लोकतंत्र का गला घोटते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। तो ये देश का पूरा सीन है, पक्ष में और विपक्ष में कैसे हमारे लोग रहें और इसी तरह के खेल करके हम सत्ता बरकरार रखें, पूरा ये खेल है। इसीलिए देखिए, आम आदमी पार्टी को चंदा मिलता है सबसे ज्यादा, या उस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, बाकी का तो सब ये दोनों मिलके खा जाते हैं। यह स्थिति है। इसलिए आपको सच को पहचानना होगा, जानना होगा। यदि आप सच को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, आपका परिवार और सब कुछ बर्बाद होना तय। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।